اس کا ماحول ہے. آدمی اپنی ذات سے اچھا ہے، اگر وہ برے ماحول میں پڑ گیا تو وہ ڈینجر ہے، تو خطرے ہیں. آدمی برا ہے لیکن اسے ماحول اچھا مل گیا تو بڑی امید ہے کہ وہ ماحول اسے اچھا بنا دے گا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر بچہ مسلمان پیدا ہوتا ہے، فطرت اسلام، وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، وہ اللہ کا فرما بردار اس کی فطرت ہے. اسلام فرما برداری کا، اطاعت کا نام ہے، تو اس کے اندر اطاعت و فرما برداری ہوتی ہے. تو ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، لیکن اس کا ماحول اگر کافر ہے تو کافر بناتا ہے، مشرک ہے تو مشرک بناتا ہے، عیسائی ہے تو عیسائی بناتا ہے، یہودی ہے تو یہودی بناتا ہے. وہ خود کافر مشرک نہیں پیدا ہوا، وہ تو اسلام کی فطرت پر پیدا ہوا، اس کے ماحول نے اسے بنایا. بچے کا ماحول گھر ہے، تو وہ گھر جس طرح کا ہے وہ اس ماحول میں اپنے بچے کو ڈال دیتا ہے. شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں، بڑی پیاری پیاری کتابیں انہوں نے لکھی ہیں. آج بھی وہ کتابیں 1000 سال گزرنے کے باوجود آج تک وہ کتابیں مدرسوں میں پڑھائی جاتی ہیں، ان کا کوئی بدل نہیں ہے. انہوں نے قرآن کریم سے 2 واقعات بیان کیے ہیں قرآن سے، یہ بتلانے کے لیے کہ بھلے ماحول کا فائدہ کیا ہے، برے ماحول کا نقصان کیا ہے. تو 2 قصے قرآن سے انہوں نے بیان کیے. یہ بتایا ہے کہ بھلے ماحول سے کیا فائدہ ہے، برے ماحول کا کیا نقصان ہے. تو پہلا قصہ ہے اصحاب کہف کا، سورہ کہف میں 15ویں پارے سے شروع ہوتا ہے، 16ویں پارے پہ ختم ہوتا ہے. اصحاب کہف کون تھے؟ یہ چند نوجوان تھے، ایمان والے تھے، نوجوان تھے، بڑے گھرانوں کے لڑکے تھے، امیروں وزیروں کے لڑکے، رئیسوں کے لڑکے. اس زمانے کا بادشاہ وہ بت پرست تھا اور وہ زبردستی لوگوں کو چاہتا تھا کہ اس کے عقیدے پر آ جائیں. جب اسے پتا چلا کہ یہ نوجوان یہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، میرے امیروں کے وزیروں کے لڑکے ہیں اور وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اس نے انہیں بلایا اور بلا کر ان سے پوچھا کہ تمہارا کیا عقیدہ ہے. انہوں نے کہا کہ جس اللہ نے زمین اور آسمان بنائے ہیں وہ ہمارا رب ہے، رب السماوات والارض، وہ ہے ہمارا رب. تو بادشاہ نے کہا کہ دیکھو میں تمہیں ایک ٹائم دیتا ہوں، اس وقت کے اندر اپنا عقیدہ بدلو، جو میرا عقیدہ ہے اسے اختیار کر لو، اور اگر تم نے اپنا عقیدہ نہیں بدلا تو میں تمہیں سخت سزائیں دوں گا، ہو سکتا ہے تمہیں جان سے مار ڈالوں. اس نے ایک ٹائم دیا ان کو. وہ وقت قریب آیا. جب وہ وقت قریب آیا تو ان نوجوانوں کو فکر ہوئی کہ اب بادشاہ ہمیں بلائے گا
बुला कर पूछेगा कि क्या फैसला किया तुमने। अगर हम जान बचाते हैं तो ईमान जाता है, और ईमान बचाते हैं तो जान जाती है। क्या करें? उन्होंने मशवरा किया, मशवरा आपस में जमा होकर मशवरा किया, क्या करना है। मशवरा बड़ी खैर है इसमें। अल्लाह ताला खैर की राहें समझाते हैं, खैर की राहें समझ में आती हैं। हुजूर की बड़ी सुन्नत है मशवरा। तो इन नौजवानों ने मशवरा किया, अगर से कि ये पहले का किस्सा है, लेकिन उन्होंने मशवरा किया कि क्या करना है। अब बादशाह बुलाएगा, पूछेगा तुमने फैसला क्या किया। जान बचाते हैं तो ईमान जाता है, ईमान बचाते हैं तो जान जाती है। क्या करें? ये दोनों बचाना है। ये कोई जान कोई मुर्गी की जान नहीं है, एक ईमान वाले की जान है, उसकी कीमत है। तो मशवरे में अल्लाह ने उनको एक राह समझाई। वो राह ये समझाई कि रात के अंधेरे में शहर से हिजरत करो, यहां से हिजरत करो, शहर छोड़ के चल दो, और कहीं पहाड़ों में जाकर जंगलों में छुप जाओ। चुनाचे वो रात के अंधेरे में शहर से निकले, पहाड़ों में चले, पता नहीं कितने दिन चले, कितनी रातें चले। उन्हें वहां एक गार नजर आया, बड़ा गार। तो उन्होंने सोचा कि यह गार बड़ी अच्छी जगह है, इस पर छुप जाएंगे। बादशाह को क्या पता चलेगा कि हम जंगलों में कहाँ हैं, किस गार में छुपे हुए हैं। ये जगह बड़ी अच्छी छुपने की जगह है। जब वो चले तो उनके साथ एक कुत्ता चला। मेरे जंगलों में चले, रात दिन चले, पता नहीं कितने रात चले, कितने दिन चले, उनके साथ एक कुत्ता चला। अरबों में, यमन, खासकर यमन के इलाकों में, ये बकरियां चराने वाले कुत्ता साथ रखते हैं। वो उस कुत्ते से दो काम लेते हैं, वो सदाया हुआ होता है, तरबियत किया हुआ। वो कुत्ते से दो काम लेते हैं। एक काम ये लेते हैं कि अगर कोई खतरा है, कोई चीज खतरे की बकरियों की तरफ आ रही है, तो वो कुत्ता जो है उसको अल्लाह ने एक सेंस दिया है, वो सूंघता है, खतरे को सूंघता है। तो वो दौड़ कर जाकर वो खतरा जो है उसको दफा करता था। बकरियों के लिए कोई खतरा नहीं है तो दौड़ कर जाकर वो उस खतरे को दूर करता। दूसरा काम वो कुत्ते से बकरियां चराने वाले ये लेते हैं कि रात को जब बकरियों को जमा करते हैं, वो बकरियां फैल जाती हैं पूरे मैदान में करने के लिए। जब वो रात को बकरियों को जमा करते हैं तो एक बकरी पहाड़ पे चढ़ गई। अब अगर वो पहाड़ पे जो बकरी चढ़ी है उसे पकड़ने के लिए जाएगा तो यह मंदिर को कौन संभालेगा, और उसे छोड़कर आ जाएगा तो रात को कोई भेड़िया फाड़ डालेगा उसे, वो बकरी हाथ से जाएगी। तो वो उस बकरी के पीछे कुत्ता छोड़ता है। वो कुत्ता जाकर उसे डराता है, काटता नहीं है, उसको मालूम है मेरे मालिक की बकरी है। जब वो कुत्ता जाकर उसे डराता है तो बकरी मालिक के पास आएगा, काम पूरा हो गया। तो इस तरह के कुत्ते बकरियां चराने वाले अरब में रखते हैं, खासकर यमन के इलाकों। तो ऐसा एक कुत्ता इनके साथ चला, इन नौजवानों के साथ। वो कुत्ता क्या करता था कि जिधर से कोई खतरा वो भागता था, सूंघता था, तो वो जाकर उस खतरे को डराकर दूर कर देता था।
تو اس طرح وہ کتا ان کی حفاظت کرتے ہوئے چلا. جب یہ نوجوان غار میں جا کر چھپے تو وہ کتا غار کے منہ پر اپنی اگلی ٹانگیں، سامنے کی ٹانگیں یوں پھیلا کر بیٹھ گیا کہ کوئی غار میں اندر جا کر ان نوجوانوں کو کوئی تکلیف. اب جب وہ غار میں ان کو اطمینان ہوا تو سو گئے. کتنے دنوں سے تھکے ہوئے اور पंडाल में बढ़िया मेहरबानी से पंडाल में बढ़िया भाई ले लिया भाई शरबत पे भाई ले लिया भाई मेहरबानी से जल्दी से खाना लेके आ जाना, छुपते छुपाते जाना. आ जाओ आप शरबत पीने भी. और अगर कमरा चलेगा तो फिर हाँ और उसको पैसे दिए तो दुकानदार वाला हैरान हो के देखता है, पैसे भी देता है, वो नौजवान को भी देता है, पैसे देता है, नौजवान को देता है. उसने कहा भाई जल्दी से मुझे सामान दो, मेरे साथी भूखे हैं, मुझे ले जाना है. वो कहने लगा पहले ये बता तुझे पैसे आए कहाँ से. वो कहने लगा मेरे जेब से निकाल के दे रहा हूँ. जेब से? अरे ये 300 साल पुराने पैसे हैं, या तो तुझे कोई खजाना मिला है. वो कहाँ मिला? वो कहने लगा 300 साल पुराने. उसने कहा कि हाँ. उसने पूछा वो बादशाह नहीं है जिसके जमाने के पैसे हैं? कहले उसकी तो हड्डियां भी खत्म हो गई. हुआ क्या, जब ये सोए तो अल्लाह ने इनको गहरी नींद सुलाई, गहरी नींद. और कुरान करीम में है सलासनियत सिनीना वज़्ज़ादू तिस्आ, 309 साल सो के उठे. कितने? 309 साल सो के उठे. तारीख की किताबों में भी ये किस्सा है. जिब्बन एक मशहूर मौर्रिख है, उसने अपनी किताब में तारीख की एक किस्सा लिखा है. उसने 300 साल बयान किए. तो हमारे उलमा ने जवाब दिया है कि तुम्हारे 300 साल सोलार कैलेंडर से है और हमारे 309 साल लूनार कैलेंडर से है. सोलार कैलेंडर लूनार कैलेंडर में एक 100 साल में 3 साल का फर्क होता है. तो तुम्हारे 300 हमारे कितने बनते हैं लूनार के? 300. तो अल्लाह की कुदरत, अल्लाह ने उनको सुलाया, उनकी हिफाजत की, फिर उन्हें जगाया. और जब वो जागे तो वो पूछने लगे एक दूसरे से कि भाई बहुत सोए हैं, बड़ी नींद सोए हैं. जैसे आप लोग रात को सोए ना मस्जिद में, कैसे सोए? तो एक दूसरे से पूछा कि कितना सोए होंगे? बहुत पसंद सोए हैं. तो कहने लगे यौमन व बाज़ा यौम, या तो पूरा दिन सोए हैं या दिन का बड़ा हिस्सा सोए हैं. अल्लाह पाक कहते हैं वो दिन या दिन का हिस्सा नहीं था, वो 309 साल सो के उठे. वो बात उर्दू में अम्मान की पहाड़ी के पास पहाड़ियों में है. मैंने वो बात देखा है. हमने बात में रहते थे, हमने वो बात देखा है. तो जब ये दुकानदार ने उससे पूछा तो ये सोचने लगा कि क्या किस्सा है भाई. हाँ कुछ बदला हुआ नजर आता है, कोई आदमी पुराना नजर नहीं आता, इमारतें बदली हुई नजर आती हैं, सारा हाल बदला हुआ नजर आता है. वो कहने लगा क्या किस्सा है, ये ज़माना वो ज़माने का नहीं है. उन्होंने कहा कि वो बादशाह ख़त्म हो गया.
वो तो मर के हड्डियां भी चूरा हो गई। तो अब इसके नौजवान की समझ में आया कि ये कोई कुदरत का निज़ाम, कोई एक अजीब बात है। फिर वो अपने बादशाह था, वो ईमान वाला था। फिर उन्होंने जाकर उस खाना खा को दिया, उनका लंबा है। मुख्तसर ये है कि शेख सादी कहते हैं कि देखो ये एक कुत्ता, एक नजीस जानवर, लेकिन उसको सोहबत मिली असहाबे कहफ की, ईमान वाले नौजवान या असहाबे कहफ कौन थे? ईमान की हिफाजत के लिए हिजरत करने वाले। 4 महीने की जमात, चिल्ले की जमात बोलते नहीं, तो ये असहाबे कहफ की जमात कैसी जमात थी? ये ईमान की हिफाजत के लिए हिजरत करने वाली जमात। तो अल्लाह आपने बुलाया।
तो कहते हैं शादी वो नहीं होगा, उसको उसका माहौल लेके डूबा, उसके माहौल ने उसे डुबोया। तो आदमी को भलाई की तरफ लाना भी माहौल और बुराई की तरफ ले जाता भी माहौल है। तो भला माहौल भला है तो बड़ी उम्मीद है कि ये भी भला बन जाएगा। माहौल बिगड़ा हुआ है तो वो खतरे में है, डेंजर में है। अब माहौल को दो तरह से बदलना, माहौल को बदलने के दो तरीके। एक तरीका माहौल के बदलने का ये है कि अल्लाह की राह में 4 महीने के लिए चिल्ले के लिए निकलना, मुस्तकिल माहौल बदल गया। आदमी अपने माहौल से एक दूसरे माहौल में आ गया। वहाँ 24 घंटे, जब 24 घंटे वो ईमान की आखिरत की बातें सुन रहा है, सोच रहा है, बोल रहा है, उसी को सुन रहा है, उसी को सोच रहा है, मस्जिद में रह रहा है। मस्जिद अल्लाह को सबसे ज़्यादा महबूब मस्जिदें हैं, ज़मीन पर सबसे ज़्यादा अल्लाह को पसंद मस्जिदें हैं, अल्लाह के घर है, वहाँ रह रहा है। फरिश्तों की सोहबत है। इसके साथ किसकी सोहबत है? फरिश्तों की सोहबत है। तो ये 4 महीने फरिश्तों की सोहबत में रह रहा है। और सोहबत का असर, आपने सुना सोहबत का असर असाबे के, यहाँ फरिश्तों की सोहबत है। फरिश्तों की सिफत है, वो हर वक्त इताअत फरमाबरदारी करते हैं, कभी नाफरमानी नहीं करते।